Hello students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know, today we are going to start your new chapter number 13. And what is the name of the chapter? Smart charts. So that is, I think you have already learned in second standard, right? थोड़ा सा हमने देखा था ना, कोई चार्ट था, उसमें से आपको काउंट करना था कि कितने लोग हैं, या तो उसमें से पिक्चर्स में देख के आपको नंबर ऑफ थिंग्स काउंट करनी थी. उस टाइप के आपको चैप्टर में आ गया है. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो आप ये देख रहे हो ना, आपको देख के पता चल रहा है कि ये क्या है. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक पे क्या दिया हुआ है, फ्लावर्स, राइट. different flowers are given. So let's start and do exercises. Flowers of different colors. Have you been to a park? क्या कभी आप कोई पार्क में गए हो? अगर गए हो तो हम यहाँ पे yes लिखेंगे, और अगर नहीं गए हो तो क्या लिखेंगे, no. Now see, what colored flowers did you see? और पार्क में आपने कौन कौन से फ्लावर्स देखे हैं? Yellow, red, pink, right? So that is I have written. If you have seen some other, you can write. Were most of the flowers yellow in color? जब भी आप पार्क पे गए थे, ये मेरी बात कर रही हूँ कि जब मैं पार्क में गई थी तो मैंने different टाइप्स के फ्लावर्स देखे थे, like yellow, red, pink, okay. But there I have seen the most number of flower is yellow. Yellow था ना, वो सबसे ज्यादा मुझे दिखा. Now see here, look at the different flowers in the picture and complete the table. Here a color of flowers given in your textbook. See which color is this? Blue, red, orange, purple, like. And blue how many? That you have to count. See here. How many are blue? Blue कितने यहाँ पे दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 are blue, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 9. Then red. Red में कितने हैं? Let's count. Here we can count. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 are red. And how many are orange? Orange here. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orange. And purple. Here we can see purple flowers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. How many are purple? 10 are purple. Understand? So this way you have to write. Pictures are already given, flowers are already given, and the colors also given. Only you just have to count and write. Now let's see the next page. Now see over here. Draw the right flower. Write how many there are. ओके तो आपको यहाँ पे लिखना है कि कितने हैं. तो हमने आगे का ये टेबल देखा ना, जो यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया, different कलर्स, एंड देन वी हैव काउंटेड. सो एज पर दैट यू हैव टू राइट. तो ब्लैंक में क्या लिखा है, डैश आर द मोस्ट इन नंबर एंड हाउ मेनी. सो विच फ्लावर इज मोस्ट इन नंबर. तो यहाँ पे आप देखो, सबसे ज्यादा आपको कौन सा फ्लावर लग रहा है, पर्पल. पर्पल सबसे ज्यादा है, और कितने हैं, 10. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, purple are the most in number, and how many purple, 10. Now number B is dash are the least in number. Which flowers are least in number and how many. So here also we have to see which is the least in number. सबसे कम कौन सा है, देखिए orange, right. सबसे कम है orange है. और how many, 5. So here you can write this one, orange and 5. dash are more than dash. अब हमने देखा कि पर्पल ज्यादा है और ब्लू कम है. फिर अगर हम दोनों का कंपेयर करें, रेड और ऑरेंज का, देखो यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं. ब्लू एंड पर्पल का कंपेयर करें हम, तो दोनों में से ज्यादा कौन है, पर्पल इज मोर एंड ब्लू इज लेस. एंड इफ वी कंपेयर दिस टू, रेड एंड ऑरेंज, सो विच इज लेस, orange is less and red is more. So we'll compare this red and orange and then purple and blue. Now let's see the blank. Purple are more than blue. If we say like this, right, purple ज्यादा है, blue कम है, तो क्या बोलेंगे हम, purple are more than blue. After that see, red ज्यादा थे, orange कम थे, तो हम क्या बोलेंगे, red are more than orange. red जो है वो orange से ज्यादा है.
Now see over here, the next picture is given. You have to see the picture very carefully and then give the answer. What do we see on the road? रोड पे हम क्या देखते हैं? Look at the traffic scene in the picture and fill in the table. आपको यहाँ पे जो ट्रैफिक है कुछ अलग अलग व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं, तो वो आपको देखना है और आफ्टर दैट यू हैव टू फिल द टेबल. अंडरस्टैंड? So here number of vehicles we can see. Here what is this? Bus. So how many buses are there? 1, 2, 3, 4 buses. After that we can see some bicycles. So how many bicycles are there? 1 and 2 bicycles. लेकिन उस bicycle में लोग means people कितने बैठे हैं? देखो 1, 2, 3, 4 and 5, right? 5 people are there. So that way you have to count as per this table. देखो टेबल में आपको दिया गया है ना, वे ऑफ ट्रैवल. वे ऑफ ट्रैवल मीन्स यहाँ पे जो पिक्चर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रैवल करने के लिए कुछ वे है. जैसे कि कोई बस में जाता है, कोई स्कूटर में जाता है, कोई कार में जाते हैं, कोई साइकिल में जाते हैं और कोई वॉकिंग करके जाते हैं. सो दीज आर वे ऑफ ट्रैवल. अंडरस्टैंड? सो पहला वाला क्या दिया है? वॉकिंग. सो हाउ मेनी पीपल आर वॉकिंग? सो दैट यू हैव टू राइट. फिर बाइसिकल, तो आपको लिखना है कि बाइसिकल में कितने लोग जा रहे हैं, या तो कितनी बाइसिकल्स है आप वो भी लिख सकते हो. स्कूटर, सो हाउ मेनी स्कूटर कैन यू सी इन द पिक्चर? आप पिक्चर में कितने स्कूटर्स देख रहे हो या स्कूटर्स में कितने लोग हैं आप वो लिख सकते हो. आफ्टर दैट बसेस. सो इन द पिक्चर नंबर ऑफ पर्सन आर नॉट क्लियर. बस में आपको दिखेंगे नहीं कि कितने लोग हैं, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते ना. सो वी विल राइट नंबर ऑफ बसेस की यहाँ पे बसेस कितनी है. आफ्टर दैट बुलॉक कार्ट. बुलॉक कार्ट काउंट करेंगे कितने हैं और हैंड कार्ट काउंट करेंगे कितने हैं. तो सबसे पहले वॉकिंग पीपल. इट्स ओके. देखो पिक्चर थोड़ा सा आपको ऐसा अनक्लियर लग रहा है, तो आपको जितने दिखेंगे आप ऐसा लिखोगे. तो वॉकिंग में कितने हैं? देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7 और उसके बाद आप बोलोगे. देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये 6, 7 है. तो फिर अगर आप देखोगे तो ये 8 और 9 ये भी तो चल के ही जा रहे हैं ना. भले वो लैंड कार्ट, ये जो हैंड कार्ट है उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं वो लोग. तो हमने काउंट किए. कितने काउंट किए? 9 पीपल काउंट किए, राइट. तो वॉकिंग पीपल में हमने कितने लिखे? 9. फिर बाइसिकल. बाइसिकल यहाँ पे आपको कितनी दिख रही है? देखो यहाँ पे तो एक भी बाइसिकल नहीं है, बट एक बाइसिकल यहाँ पे है एंड एक बाइसिकल यहाँ पे है. तो उस बाइसिकल में हम देख सकते हैं कि 1, 2, 3 एंड 4, 5. 4, राइट. तो हम यहाँ पे 5 लिखा है बाइसिकल में, तो हम 5 लिखेंगे. उसके बाद स्कूटर. स्कूटर जो है उसमें भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्कूटर देखो यहाँ पे कोई स्कूटर नहीं है, इस साइड भी यहाँ पे स्कूटर है. नाउ दिस साइड स्कूटर इज नॉट गिवन, दिस साइड ऑल्सो स्कूटर इज नॉट गिवन. ओनली हियर 2 स्कूटर्स आर गिवन. और 2 स्कूटर में देखो कितने लोग बैठे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा हुआ है? 6. अंडरस्टैंड? उसके बाद बसेस. तो बसेस जो है उसके हमको नंबर ऑफ पीपल तो काउंट नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने ओनली 4 बसेस को काउंट करके लिखा है. 1, 2, 3, 4 बसेस. देन बुलॉक कार्ट. हाउ मेनी बुलॉक कार्ट कैन वी सी? हियर ओनली 1 बुलॉक कार्ट. अंडरस्टैंड? एक ही बुलॉक कार्ट हम देख रहे हैं. उसके बाद हैंड कार्ट. यहाँ पे मैंने हैंड कार्ट पे लिखा है. तो हैंड कार्ट आपको कितनी दिख रही है रोड पे? 1 and 2 हैंड कार्ट. अंडरस्टैंड? तो मैंने यहाँ पे हैंड कार्ट लिखा है. नाउ रिलेटेड टू दैट यू हैव टू फिल द आंसर. देखो ये जो है ना काउंटिंग आप करो, आपको चेंज भी करना है तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है. अंडरस्टैंड? आप कोई ये जो पर्सन है उसमें कोई साइकिल 2 ही लिखेगा तो भी चलेगा. ओके, साइकिल आपको दिख तो 2 ही रही है ना, लेकिन उसमें हमने लोग बैठे हैं वो काउंट किए. तो अगर आपको उस तरीके से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सी इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट? आपको सबसे ज्यादा कौन सा वे दिखा ट्रैवल करने का? बाय वॉकिंग, राइट. सबसे ज्यादा तो वॉकिंग करके ही जा रहे. सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? वॉकिंग, क्योंकि वही सबसे ज्यादा 9 है इसलिए. नाउ विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द लीस्ट? कौन सा सबसे कम हमको दिखा? सो दैट इज बुलॉक कार्ट. एक ही है, BULLOCK बुलॉक, CART कार्ट, बुलॉक कार्ट. नाउ द नंबर ऑफ पीपल इज वॉकिंग मोर देन
द नंबर ऑफ पीपल इज वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ डैश। अब नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग है, किससे मोर है? तो हम हैंड कार्ड भी लिख सकते हैं, स्कूटर भी लिख सकते हैं, बाइसिकल भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइसिकल लिख रही हूँ, BICYCLE, बाइसिकल। सी द नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ बाइसिकल। देखो यहाँ पे क्लियर ही है ना, पीपल वॉकिंग है वो मोर है, किससे? बाइसिकल से। आप लोग स्कूटर भी लिख सकते हो, बसेस भी लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन द नंबर ऑफ डैश। नंबर ऑफ बसेस है वो किससे लेस है? स्कूटर से। स्कूटर हमारा जो स्कूटर के लोग हैं वो 6 थे। या तो आप हैंड कार्ड पे लिख सकते हो, बुलॉक कार्ड पे लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे बसेस और बुलॉक कार्ड का कंपैरिजन करेंगे। द नंबर ऑफ बसेस इज लेस, और या तो हैंड कार्ड का भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन हैंड कार्ड। नो, ये तो लेस नहीं है। फिर बुलॉक कार्ड, क्या नंबर ऑफ बसेस इज लेस बुलॉक कार्ड से या लेस है? नहीं। इसका तो कंपैरिजन कैसे होगा, क्योंकि बस तो लेस नहीं है। किससे लेस है बसेस? साइकिल से, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बाइसिकल, या तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्कूटर। अंडरस्टैंड? समझ में आया है आपको? नाउ सी हियर द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6? मीन्स 6, देखो यहाँ पे आपको ये 6 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज अ डाइस। आप इससे खेलते हो ना, सबने डाइस देखा होगा और सब खेलते होगे, राइट। लूडो में आपने देखा ही होगा इसको। सो हैव यू प्लेड एनी गेम्स विद डाइस? यस, वी ऑल हैव प्लेड। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाई? तो आपने डाई देखा है, तो उसमें कितने फेसेस होते हैं? अलग अलग। एक फेस में 1 होता है, दूसरे फेस में ऐसे 2 नंबर्स होते हैं, फिर तीसरे फेस में 3 होते हैं, फिर एक फेस में होते हैं 4, फिर दूसरे फेस में ऐसे होते हैं 5, और बाद में होते हैं 6। मतलब कि उसकी जो 6 साइड्स होती है उसमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 उस तरीके से नंबर्स लिखे होते हैं, राइट। ये हम सब ने देखा ही है। तो यहाँ पे उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपके घर पे एक डाइस है तो आप ये डाइस लो और क्या करना है? थ्रो अ डाई, राइट। तो उसको थ्रो करो। उसके बाद आपको क्या करना है? लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई। चलो मेरे पास अभी एक डाइस है, मैंने फेंका, राइट। तो कोई भी नंबर तो आया होगा, या तो 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा। तो वो नंबर को आप लिखो और क्या करना है? फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क। दिस, आपको ऐसा एक मार्क करना है इन फ्रंट ऑफ द नंबर एंड थ्रो द डाई 30 टाइम्स। कितनी बार आपको ये डाई थ्रो करना है? 30 टाइम्स। एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम, और टेबल पे हर बार हमें मार्क करते रहना। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फेंका, जैसे कि ये पेन है तो ये मैं इसको अभी डाइस बोलती हूँ, राइट। तो मैंने ये फेंका, तो डाइस फेंका, तो उसके ऊपर 2 आए, तो 2 आए तो मैंने इसमें एक लाइन कर दिया, ये 1 टाइम हो गया। अब मैंने सेकेंड टाइम फेंका, 4 आया, तो 4 में मैंने एक लाइन कर दिया। फिर मैंने इसे थर्ड टाइम फेंका तो 1 आया, तो 1 में मैंने एक लाइन कर दिया। फिर फोर्थ टाइम फेंका तो उसमें 6 आया, तो ये एक एक लाइन कर दिया। ऐसा करते करते आपको 30 टाइम्स को ऐसे थ्रो करना है, और जितनी भी बार जो नंबर आए ना वैसे लिखना है। तो देखो 30 टाइम तो अभी वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं, तो आप आपके घर पे इसको भी कर सकते हो। जैसे आप थ्रो करो, जो भी नंबर आया उसमें लिखो, अगेन थ्रो करो, जो भी नंबर आया उसमें लिखो, और आप काउंट भी करते जाओ कि आपने कितनी बार इसको थ्रो किया। 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 30 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? इस लाइन को काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 27 एंड 3 30। तो देखो मैंने ये 30 टाइम थ्रो किया था, तो ये सारी लाइंस भी 30 ही होनी चाहिए। अगर उससे कम है उसका मतलब आपने कहीं पे मिस्टेक की है। तो आप इसको 30 टाइम, डाइस को क्या करो 30 टाइम थ्रो करके जो भी नंबर आए उसमें आप टेली मार्क करते जाओ। नाउ सी विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम। तो उसमें आपने यहाँ पे लाइन तो की ही होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा नंबर आपको कौन सा आया। यहाँ पे देखो ये जो है वो कितनी बार आया? 4 टाइम्स आया।
2 नंबर कितनी बार आया? 5 टाइम्स आया। 3 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आया। 4 नंबर्स कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 टाइम्स। 5 नंबर 4 टाइम्स एंड दिस नंबर 6 आया आपको 3 टाइम्स। सो विच इज द मोस्ट नंबर? सबसे ज्यादा कब कौन सा नंबर आया? 3rd नंबर। तो यहाँ पे हमने लिखा विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम? कौन सा फेस उसका? 3, राइट, 3rd। तो हमने यहाँ पे नंबर 3 लिखा। हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप? 6 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। सो यू विल राइट हियर 3 टाइम्स। नाउ नेक्स्ट में क्या है? सी 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन। अब 4 है, 4 कितनी बार आया है? 5 टाइम्स, राइट। तो किससे ज्यादा है? वो 5 से भी ज्यादा है और 6 से भी ज्यादा है। तो आप उसको दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 6, राइट। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा है। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 4, क्योंकि 4 जो है हमको तो यही देखना है। तो यहाँ पे हम 5 भी कर सकते हैं। 5 से भी मोर आया और 6 से भी मोर आया, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा भी किया है जो कि 5। 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 6 एंड 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन 5। आई बात समझ में? नाउ व्हाट यू हैव टू डू, कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू। नाउ इट इज प्रैक्टिकल, राइट। आपको क्या करना है? इसको बाजू वाले स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करना है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको सिर्फ आपका ही कंपेयर करना है, और इसको डाइस अगर आपके पास है तो डाइस से ही करना। आपका आंसर मुझसे अलग भी हो सकता है, लेकिन ये आपको अपने आप करना है। आई बात समझ में? टोटल जो है वो यहाँ पे इसका कितना आना चाहिए? 30। अलग अलग लाइंस करो। सो आई वॉन्ट टोटल 30। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। See here, what you have to do, find out from people around you. अब यहाँ पे आपको आसपास के जो लोग हैं ना, उसकी हेल्प लेके कुछ फाइंड करना है। What you have to find? See, talk to people around you about their favorite sweets. आपको क्या करना है? आपको people से टॉक करना है। किसके बारे में टॉक करना है? उसकी फेवरेट स्वीट के बारे में। तो now you cannot go out to ask, but at least you can ask to your family members. आपको आपके फैमिली मेंबर से पूछना पड़ेगा। एंड सी फेवरेट स्वीट एंड नंबर ऑफ पीपल। तो फेवरेट स्वीट क्या यहाँ पे है? जलेबी। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही रैंडमली स्वीट्स के नाम लिख दिए। आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप कर सकते हो। सी पहले क्या लिखा मैंने? जलेबी, देन रसगुल्ला, देन रसमलाई, देन लड्डू, देन बर्फी एंड देन काजू कतरी। अंडरस्टैंड? तो ये अलग अलग टाइप्स की मिठाइयाँ होती है। सो आई हैव रिटन। अब लोगों को पूछा तो मुझे 20 पीपल ऐसे मिले कि जिसको जलेबी पसंद थी। तो मैंने यहाँ पे कितने लिखे? 20। फिर 18 रसगुल्ला जिसको पसंद था वो मुझे 18 मिले। तो मैंने यहाँ पे 18 लिखा। अब रसमलाई थी, वो ऐसे 25 पीपल थे जिसको रसमलाई पसंद थी। ओके। फिर यहाँ पे लड्डू की बारी आई, तो लड्डू जिसको पसंद थे वैसे 22 पीपल थे जिसको लड्डू पसंद थे। फिर बर्फी पसंद थे उसके 17 पीपल थे जिसको बर्फी पसंद थी, और 15 पीपल ऐसे थे जिसको काजू कतरी पसंद थी। नाउ सी हियर, फ्रॉम द एबोव टेबल आंसर द फॉलोइंग। अब हमने ये टेबल बनाया। देखो ये नंबर तो ऐसे ही रैंडमली लिखा हुआ है। ओके, इफ यू वांट टू चेंज दिस नंबर यू कैन। नंबर फर्स्ट, मोस्ट फेवरेट स्वीट। तो सबसे ज्यादा फेवरेट स्वीट कौन सी है? तो आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 25। सो दिस इज रसमलाई। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? रसमलाई। नाउ लीस्ट फेवरेट स्वीट। तो आपको पता होगा कि कौन सी स्वीट है वो सबसे कम लोगों को पसंद है। सो विच इज दिस? काजू कतरी। अंडरस्टैंड? मोस्ट फेवरेट स्वीट इज रसमलाई and least favorite sweet is Kaju Katri. Understand? Now next, see, dash is liked more than dash. Which sweet is like more than this? तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं ना जलेबी और लड्डू को। लड्डू इज मोर, सो लड्डू इज लाइक्ड मोर किससे? देन जलेबी। आई बात समझ में? क्योंकि जलेबी 20 है,
लड्डू 22 है, तो लड्डू इज लाइक्ड मोर देन जलेबी। आप ऐसा भी लिख सकते हो ना। दूसरा है देखो, डैश इज लाइक्ड मोर देन डैश। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, रसगुल्ला एंड बर्फी, सो ये 18 है, ये 17 है, तो ये मोर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर में रसगुल्ला। रसगुल्ला इज लाइक्ड मोर देन बर्फी, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना बर्फी। अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सी डैश इज लाइक मोर देन द डैश। अब हम बर्फी और काजू कतरी का कंपैरिजन करें तो बर्फी ज्यादा को पसंद है, काजू कतरी कम है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बर्फी इज लाइक्ड मोर देन द काजू कतरी। अंडरस्टैंड? अभी भी यहाँ पे एक और है, डैश इज लाइक मोर देन द डैश। अगर आपको अभी कंपेयर करना है रस मलाई का और बर्फी का, या रस मलाई का और लड्डू का, तो भी आप कर सकते हो। तो रस मलाई ज्यादा है, लड्डू कम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रस मलाई इज लाइक्ड मोर। रस मलाई इज लाइक्ड मोर देन दी लड्डू। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू राइट द आंसर इन योर टेक्स्ट बुक। आपको आंसर इस तरीके से लिखना है। अगर आपने ये नंबर्स चेंज किए हैं ना, तो आपके आंसर्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। Okay, if you are writing same number, so your answer will not different. Now let's see the next page. Now see the next question. Next question में आपको क्या करना है, ask your friend about the number of people living in their home. आपको फ्रेंड्स को, अलग अलग फ्रेंड्स को पूछना है कि उसके घर पे कितने लोग रह रहे हैं। Fill in the table. Okay, तो क्या करना है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। देखो, कोई एक ऐसा फैमिली है जिसमें एक है, कोई एक ऐसा फैमिली है जिसमें ओनली 2 पीपल है, ऐसा फैमिली जिसमें 3 पीपल, कोई ऐसा फैमिली जिसमें 4 पीपल। तो आपको यहाँ पे ऐसा फाइंड करना है कि कितने फैमिली में 1 लोग है, कितने फैमिली में 2 पीपल है, कितने फैमिली में 3 पीपल है। राइट, तो जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा। सो आई एम राइटिंग हाउ मेनी फैमिलीज ऑफ 1 अलोन। ऐसा कितना फैमिली है, 2। राइट, इमेजिन करो कि इतने 2 है, उसके बाद ओनली 2 पीपल आर लिविंग। इतने क्या फैमिली, 5 फैमिलीज मुझे मिले। उसके बाद अगर 3 पीपल रह रहे हैं, उसके मुझे 15 फैमिलीज मिले। 4 पीपल के मुझे 12 फैमिलीज मिले। 12 फैमिलीज ऐसे मिले फॉर एग्जाम्पल कि जिसमें 4 पीपल थे। फिर 18 मुझे ऐसे मिले कि जिसमें 5 लोग रह रहे थे। फिर मैंने किसी को पूछा तो 11 फैमिलीज, 11 हाउस। राइट, 11 फैमिली मुझे ऐसे मिले जो 6 पीपल वाले थे। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा 7 फैमिली मुझे ऐसे मिले, 7 पीपल वाले मुझे इमेजिन करो कि 20 फैमिलीज मिले। 20 फैमिली में 7 पीपल थे। और 8 फैमिली वाला मुझे 8 पीपल वाला मुझे एक ही फैमिली मिला। राइट, जिसमें 8 लोग थे। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। ये प्रैक्टिकल है, ये थोड़ा सा आपको पूछना पड़ता है ना। लेकिन हम अभी पूछने तो नहीं जाएंगे सबको, तो हमने इमेजिन किया, सोचा। आपको पता होगा कि इतने घर में आपने सोचा कि हाँ मेरे ये फैमिली है, उसके घर में इतने लोग रह रहे, अंकल के घर पे इतने लोग रह रहे। तो वैसा आप कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर इसमें लिखो। नाउ नंबर 3, सी मोस्ट फैमिलीज हैव डैश पीपल लिविंग इन देयर होम। तो ऐसा कौन सा फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा लोग, कितने हैं फैमिली? तो देखो, मोस्ट फैमिली हैव डैश पीपल। तो देखो यहाँ पे 5, 15, 12, 20, तो सबसे ज्यादा यही है। तो कौन सा है? मोस्ट फैमिली हैव 7 पीपल। राइट, मोस्ट फैमिली हैव 7 पीपल लिविंग इन देयर होम। राइट, 7 लोग रह रहे ऐसे फैमिली। नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम इज, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम इज, देखो सबसे कम जो है वो यही है, द स्मॉलेस्ट पीपल। तो स्मॉलेस्ट वाला कौन सा होगा? दैट इज हियर वी कैन से, सी सबसे कम नंबर ऑफ पीपल 1 है और उसके कितने फैमिलीज है? 2।
द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम इज 2 एंड द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल, देखो 4 पीपल है तो उसके कितने फैमिलीज है 12। आई बात समझ में। और यहाँ पे भी हमको यही देख रहे हैं ना, मोस्ट फैमिली है वो 7 पीपल, 7 लोगों का फैमिली है वो सबसे ज्यादा है। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम, सबसे कम जो है वो 1 है और उसके कितने फैमिलीज है 2। एंड आफ्टर दैट द नंबर ऑफ फैमिलीज लिविंग 4 पीपल इज 12। ओके, तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हो कि कितने लोग या कितने फैमिलीज में रहते हैं। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। हियर व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स रीड। व्हाट हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे? Find out and note down. So this is again class activity. If you are in the class, then you can ask to your friends, your classmate, that what they have in the lunch. But right now it is not possible. तो आप क्या करो कि आप ऐसे ही सोचो, राइट, कि राजमा राइस कितने लाए हैं, सैंडविच कितने लाए हैं, ब्रेड रोल, मैगी, पराठा, ये सारे फूड आइटम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो आपको पता होगा ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब लास्ट ईयर थे तो आपको पता होगा कि कौन कौन से सबसे ज्यादा राजमा राइस लेके आते थे, सबसे ज्यादा सैंडविच लेके आते थे। तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको एज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राजमा राइस है वो 5 स्टूडेंट्स ला रहे हैं, 5। सैंडविच जो है वो कितने सारे लेके आ रहे हैं, अगेन 6 लेके आ रहे हैं, राइट। ये हम सिर्फ नंबर को एज्यूम कर रहे हैं। ब्रेड रोल है वो 2 स्टूडेंट्स लाए, मैगी है वो 8 स्टूडेंट्स लाए, एंड पराठा है वो 10 स्टूडेंट्स लाए हैं। पराठा इज हेल्दी फूड, राइट। राजमा राइस, paratha, this both are very healthy food. You have to eat this type of food. Now see, food item brought for lunch by the biggest number of students. Which food item brought by the students in the biggest, right? तो कौन सी ज्यादा है, सबसे ज्यादा कौन लेके आता है, सबसे ज्यादा कौन सी थिंग्स है जो बच्चे लेके आते हैं, 10 ये है. And what is this? Paratha. So here you can write paratha. उसके बाद क्या है, food item brought by the smallest number of students. So which is the smallest? This one, number 2 only. So this is bread roll. Here you can write B-R-E-A-D, bread, and R-O-L-L, roll. Okay. If you want to change these items, if you want to change this number, you can change. आप इसमें change कर सकते हो, ये तो मैंने लिखा हुआ है. But if you want to write another numbers, you can write. But here your answer will change. आपको ये answer change हो जाएगा. Understand? Now let's see the next page. See in the next page, getting smart with chart. अब तक हमने क्या किया कि कुछ सिंपल इंफॉर्मेशन थी, उसको हमने देखा कि who is the biggest in number, who is the smallest in number, right? Which thing is big, which thing is small, which is more, which is less. हमने सिर्फ इतना ही ढूंढा. Now see, this is attendance board. ये क्या दिया हुआ है, एक attendance board दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो classes 1 2 3 4 5, the number of students, then present and then absent. देखो in class first total 27 students are there. So 27 में से 8 फरवरी को 25 स्टूडेंट्स आए हैं, तो 2 एब्सेंट हो गए ना. यस, तो यहाँ पे आपने 2 लिखा हुआ है ऑलरेडी आपके बुक में. नाउ इन सेकेंड स्टैंडर्ड वी कैन सी 23 स्टूडेंट्स और आए कितने हैं, सिर्फ 22 आए हैं. इसका यही मतलब है कि ओनली 1 स्टूडेंट इज एब्सेंट. उसके बाद यहाँ पे 24 है, 21 ही आए हैं, 21 आर प्रेजेंट. सो हाउ मेनी आर एब्सेंट, 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट. Now we can see here number of students 22, then present 18. So how many are absent? 18 after 19, 20, 21, 22. So 4 students are absent. So here you will write 4. And here in class 5, 25 total, 23 are present. And students absent है सिर्फ 2. Okay, because इन दोनों का अगर आप subtraction करोगे तो ही आपको ये 2 मिलेगा. Now you have to find out total 1 to 5 क्लासेस के टोटल कितने स्टूडेंट्स है वो आपको फाइंड करना है. फिर 8 डेट को 1 to 5 क्लासेस के कितने बच्चे प्रेजेंट है आपको वो काउंट करना है. एंड
फिर यहाँ पे टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स को आपको काउंट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो 7 + 3 10, 10 and 4 14, 14 and 2 15 16, राइट. 14 में 2 ऐड करोगे तो 15 and 16. अब 16 में 5 ऐड करना है. सो 17, 18, 19, 20 and 21. तो 21 आया. सो 1 is sum and carry over 2. Now is very easy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So here 121. Okay. Now total of this present 5 6 7, then 8, 8 and 8 16, 16, then 17 18 19. So this is 9 and carry over 1. Now see 2 + 1 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ पे आ गया 10. अब आपको क्या फाइंड करना है, जो एब्सेंट है. तो यहाँ पे कितने एब्सेंट है देखो, यहाँ पे है 2 3 4 5 6, 6 and 4. 6 and 4 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10, 10 and 2 12. ओके. सो टोटल पूरे स्कूल में 1 to 5 के बच्चे 121 हैं. एंड टुडे मीन्स 8 फरवरी को 109 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और 12 स्टूडेंट्स एब्सेंट है. ओके. नाउ सी दिस बोर्ड shows the number of students in each class. It also shows the number of students present and absent, right? तो हमने देखा total number of students, number of present and number of absent. Now how many children in all are there in the school? तो how many children all? तो यही है ना, 121 children are there. How many children in all are absent on that day? मतलब कि टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे उस दिन पे. हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट. तो एब्सेंट कितने थे 12. पूरे स्कूल में अगर हम देखने जाए 1 to 5 क्लासेस के, तो कितने बच्चे एब्सेंट थे 12 स्टूडेंट्स, राइट. तो समझ में आ गया. इसमें हमको टोटल फाइंड करना था और इसमें हमको कितने एब्सेंट थे वो फाइंड करना था. नाउ सी द नेक्स्ट वन. अब हम यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ चार्ट दिया हुआ है, एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट. तो ये एब्सेंट स्टूडेंट्स ही शो करेगा सिर्फ. देखो ये जो चार्ट था उसमें क्या था, इसमें 1 to 5 के टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट एंड नंबर ऑफ टोटल, राइट. और यहाँ पे जो है वो सिर्फ एब्सेंट का ही चार्ट है. सो दिस इज क्लास 1 2 3 4 5. क्लास 2 में एब्सेंट स्टूडेंट्स, तो आपको पता है जो ये क्लास 1 है उसमें एब्सेंट 2 है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 स्माइली ड्रॉ किए हैं. फिर क्लास 2 था तो क्लास 2 में एक ही था, राइट. तो यहाँ पे एक स्माइली ड्रॉ किया हुआ है. नाउ सी इन क्लास 3 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सो 3 smileys are drawn over here. Then in class 4 4 students are absent, so we can see 4 smileys are drawn here. And in class 5 how many students are absent? 2. So here we have to draw smiley. How many smiley? 2. Here 1 and here 2. So that way you can draw. Okay. So now understand, जितने भी absent students है उतने smileys हमने draw किए. Now see here, let's read. This is a chart to show the number of absent students. Each absent student is shown by this. Means अगर आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे, ये हेड काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन से क्लास में कितने एब्सेंट है. In the chart shows the absent students of class 5. आई बात समझ में. आपको क्या करना था, चार्ट में क्लास 5 के एब्सेंट स्टूडेंट्स को शो करना था, जो हमने यहाँ पे कर दिया है. ओके. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी हियर इन दिस क्वेश्चन, नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे हमने जो स्माइली वाला चार्ट देखा ना एब्सेंट स्टूडेंट का, आपको चार्ट स्टडी करना है और इसके आंसर्स देने हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन the class with the highest number of absent students is, so which class, in which class we can see highest absent. So here in class 4, so here you can write class 4th. Okay, class 4th में सबसे ज्यादा absent है 4. Now here see
The class with the least number of absent students is, which class is the least number of absent students? Second class, class 2. So here we will write CLASS, class 2. Okay, now next one, the class with 3 absent students is, so in which class we can see 3 absent students? Here class 3. Class 3 has 3 absent. So here we can write class 3. Now the number of students absent in class 4 and class 5 are, so in class 4, 4 students, and class 5 2 are 4 and 2. आई बात समझ में? The number of students in class 4. In class 4 students are absent, and in class 5 2 students are absent. Understand? So this way you have to fill in the blanks. आपके टेक्स्ट बुक में आपको blanks fill करनी है. And one more thing, आज हमने जितनी भी एक्सरसाइजेस टेक्स्ट बुक में किया है वो आपको कंप्लीट कर लेनी है. अंडरस्टैंड? थैंक यू.